नाव में अकेला जाल फेंक रहा है, कोई मदद करने वाला नहीं। परंतु वही पतरस जब प्रभु का बात सुनकर आगे बढ़ता है तो पतरस बोलता है 3000 लोगों ने अपना जीवन एक दिन में प्रभु को दे दिया। The more you honor God, God will give you more honor in this world. And He will show you that He is unlimited God in your life. Amen. Hallelujah. Our God is a wonderful God. हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो परमेश्वर हमारी राह को भी देखना चाहता है। Amen. Hallelujah. Yes, we know. আমরা জানি ঈশ্বর যিশু বলেছেন আমি পথ। Jesus said I am the way. प्रभु यीशु ने कहा मैं मार्ग हूँ। परंतु in somewhere down the road God wants to see our way, that where we are walking. हम कहाँ चल रहे हैं, আমরা কোন রাস্তা, আমরা কোন মার্গ নিয়ে, আমরা কোন পথে আমরা চলছি। God wants to see, are we really walking according to our will and our plan? আমরা নিজে ইচ্ছা থেকে আমরা যা কিছু ভেবেছি সেইভাবে চলছি, or we are thinking something else. Amen. Hallelujah. I welcome all of you in the name of Jesus Christ. That this is the year of unlimited God. So let's start with God in this year. Amen. My topic is honor God by your obedience. Honor God by your obedience. परमेश्वर का सम्मान करो आज्ञाकारी या आज्ञा मानने के द्वारा। Amen. Hallelujah. ঈশ্বরকে সম্মান দিন ওনার আজ্ঞা পালন করে। আমেন। আমরা বাধ্যতায় কোনো দিন থাকতে চাই না। আমরা চাই আমাদের কথা সবাই শুনুক, কিন্তু আমরা অন্যর কথা অনেক খুব কম ফলো করি। কিন্তু আজকে আসুন আমরা প্রভুর বাক্যতে যদি দেখি, দ্য কি অফ ব্লেসিং অফ গড ইন আওয়ার লাইফ, in your life is obedience. যদি আজকে আমরা आज्ञा पालन যদি না করি, अगर आज हम आज्ञा नहीं मानते हैं, the key, अगर आशीष पाना है तो उसका मेन कुंजी या चाबी है, वो है आज्ञा। Obedience is an action word. Obedience, you know, this is an action word. Obedience, that means आज्ञाकारिता। इसका मतलब that is an action word. You have to act. Amen. You cannot keep, but you have to act. आप इसको रख नहीं सकते हो, आपको इसके द्वारा चलना है। Amen. Because obedience is not a you can keep in one basket, you can keep in one bottle. Obedience is an action word. You have to do something. Amen. Hallelujah. Yeah, मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छा इंग्लिश हमसे अच्छा जानते हो। I'm just telling obedience. We read obedience, but we do not understand this is an action word. এই action আমরা পুরো বাইবেলে আজকে দেখব। First Samuel chapter 2 verse 30. প্রথম Samuel chapter 2 verse 30. Therefore the Lord God of Israel declared, I did indeed say that your house and the house of your father should walk before me forever. But now the Lord declares, far be it from me. For those who honor me, I will honor, and those who despise me will be lightly esteemed. Amen. Hallelujah. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर
करूंगा। आमेन। और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। आमेन। हालेलुया। ऑनर गॉड बाय योर ओबीडियंस। परमेश्वर की आज्ञा आप मानते तो हो, परंतु अगर आज हम परमेश्वर की सम्मान के लिए क्या कर सकते हैं? हाउ वी कैन ऑनर गॉड। हम परमेश्वर के सम्मान के लिए क्या कर सकते हैं? परमेश्वर स्वयं कहता है, এখানে সদাপ্রভু নিজে বলছে, তুমি যদি আমায় সম্মান দাও, আমাকে যদি সম্মানিত রাখো, যদি তুমি আমাকে অনার দেবে, তাহলে ইউ উইল বি অনার্ড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। আমেন। হালেলুয়া। You know, book of Isaiah 29 verse 13, और प्रभु ने कहा, किसने कहा? किसने कहा? प्रभु ने कहा। क्या कहा? ये लोग जो मुझे मुंह से क्या करते हैं? मेरा आदर करते हैं। मेरा क्या करते हैं? आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे क्या करते हैं? दूर रखते हैं। जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। परमेश्वर की आज्ञा या परमेश्वर का सम्मान सिर्फ मुंह से नहीं होता है। परमेश्वर का सम्मान इट शुड बी इन एक्शन। आमेन। हालेलुया। बहुत लोग तो कहते हैं, यस आई एक्सेप्ट जीसस, मैं यीशु को ग्रहण तो करता हूं, परंतु उसमें कोई कार्य नहीं दिखता है। आमेन। हम परमेश्वर को सिर्फ दिखाने के लिए सम्मान नहीं दे सकते हैं। वी कैन नॉट ऑनर गॉड। हम ऐसे ही परमेश्वर को बताने, हाँ ठीक है, मैं प्रभु की दासी हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं, हाँ मैं प्रभु को जानता हूं, हाँ, परंतु हमारा काम और हमारा जो जबान है वो मैच नहीं होता है। इट डजंट मैच। और इसीलिए परमेश्वर आपको संसार में ऑनर नहीं दे पा रहा है। इसलिए आप हर जगह इंसल्टेड हो रहे हो, हर जगह आप बेइज्जत हो रहे हो, हर जगह आप छोटा हो रहे हो, क्योंकि प्रभु का वचन है ये कि अगर तुम मुझे सम्मान करोगे, मैं तुम्हें भी सम्मानित करूंगा। आमेन। हम जबान से प्रभु को सम्मानित करते हैं, हम चर्च आते हैं, हम हाथ उठाकर आराधना करते हैं, हम मुंह से परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, परंतु जब हमें अपने शरीर और अपने जीवन के द्वारा कुछ करने का काम आता है, उस समय हम पीछे रह जाते हैं। आमेन। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर परमेश्वर के लिए कुछ करना है तो आज मैं कुछ ऐसी बातों को आपको बताऊंगा कि हम कैसे परमेश्वर को सम्मानित कर सकते हैं। हमारा जीवन कैसे इसमें मैच होना चाहिए। हम जब लाइफ ऑफ अब्राहम देखते हैं, अब्राहम ऑनर गॉड थ्रू हिज ओबीडियंस। अब्राहम परमेश्वर को सम्मान दिया, कैसे पता है? आज्ञा मानकर। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग बोलते हैं, ना ওর মুখ থেকে আমি শুনেছি ও প্রভুকে ভালো, ওনার মুখ থেকে শুনেছি শুধু, কিন্তু ওর জীবনকে আমি দেখছি না कि ও সত্যি প্রভুকে ভালোবাসে। আমেন। হালেলুয়া। আমি তোমার মুখ থেকে শুনেছি তুমি যিশুকে ভালোবাসো, কিন্তু তোমার জীবন আর তোমার ওয়ার্ড ম্যাচ হচ্ছে না। तेरा जीवन और तेरे शब्द में बहुत बड़ा गैप है। आमेन। हालेलुया। Let's see some powerful things, because today is the first Sunday. Do not forget this message throughout this year. इस मैसेज को आप पूरे साल मत भूलना, क्योंकि यही इस साल के आशीष का नींव रखने वाला है। Amen. This message is going to keep the foundation. Amen. इस मैसेज को आप याद रखना। Amen. Let's talk about Genesis, आदि पुस्तक chapter 12 verse 2. The book of Genesis chapter 12 verse 2. आदि पुस्तक 12 और 2 की बोलছে। यहाँ पर परमेश्वर वादा करता है अब्राहम से, क्या कहता है कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। Amen. जिस तरह 31st नाइट में परमेश्वर ने आपसे वादा किया
कि मैं आपको इस साल ये आशीष दूंगा। आमीन। उसी तरह परमेश्वर ने अब्राहम को भी कहा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति और तुझे क्या दूंगा, आशीष दूंगा, और तेरा नाम क्या करूंगा, बड़ा करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। आमीन। सो पावरफुल ब्लेसिंग्स, इतनी सुंदर आशीष, कितना अच्छा। आपको 31 तारीख को भी बहुत सारा वचन मिला, आपने सुना है, आपने सबने सुना है कि क्या क्या परमेश्वर करने वाला है इस साल। यू ऑलरेडी हर्ड ऑल दोस थिंग्स, आपने सुना है, अब्राहम ने भी सुना। परंतु अब्राहम ने क्या किया और हमने क्या किया? आमीन। अब्राहम क्या करता है और अब तक हम क्या करें, आइए हम देखते हैं। आमीन। उसका 12:4 में लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। Obedience is what? In action now. Amen. अब्राहम ने सुना और अब्राहम चलने लगा। Amen. आपने सुना, आप जाकर भूल भी गए होंगे। आपने सुना, कितने लोगों ने सुना, उस दिन तालियां बजाया, उस दिन आपने परमेश्वर की स्तुति की, और कितने लोग भूल गए आप। Amen. परंतु बाइबल में क्या लिखा है? अब्राहम ने इस वचन के अनुसार, जो उसने परमेश्वर के वचन को सुना, अब्राहम चला। और बाइबल में लिखा, लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश निकला, उस समय वो 75 वर्ष का था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को ऑनर अगर आपको देना है, देयर इज नो बैरियर्स, कोई बैरियर नहीं है। अगर आप, कोई रुकावट नहीं है। अगर आप खुद से परमेश्वर के सम्मान को रोकना चाहते हैं तो आप ही रोकेंगे। आमीन। हालेलुया। আপনি দেখবেন অনেক লোক, আগে কেউ বলতো না, কিন্তু এখন অনেক লোক বলে, যেই আপনি একটু রাগ করুন, লোক বলবে তোমার যিশু তোমাকে এই শিক্ষা দেয়, তোমার যিশু রাগ করতে শিক্ষা দেয়, তোমার যিশু ঝগড়া করতে শিক্ষা দেয়। আগে কেউ বলতো না, এখন বলে। आमीन। कभी कभी परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों के लिए एग्जाम्पलरी बने। आमीन। क्योंकि जो लोग हमें ऐसा बोल रहे हैं कि यीशु तुम्हारे की राग करते सिखाए, क्या परमेश्वर तुझे झगड़ा करना है, इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो किंतु भालोई बोलছে যিশুকে। তার মানে ও বলছে যিশু এই শিক্ষা দেয় না, তাহলে তুমি কেন ঝগড়া করছো? আমেন। इनडायरेक्टली डायरेक्टली किंतु वो আপনাকে सेपरेट করছে। তার মানে वो बोलছে, वो बोल रहा है कि तुम्हारा यीशु अच्छा है, तुम्हें अच्छी शिक्षा देता है वो, तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो, तुम क्यों मुंह से बुरी बात बोल रहे हो, तुम क्यों दूसरों के बारे में बात कर रहे हो, এই তুমি চার্চে যাও, তুমি এই সব করো না, তুমি কেন এরকম করছো, তুমি তো ভালো কাজ করছো। ইনডাইরেক্টলি আর ডাইরেক্টলি দে আর সেইং জিসাস ইজ দ্য ওয়ান্ডারফুল পারসন। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे द्वारा प्रभु का सम्मान हो। अब बाइबल में क्या लिखा है? अब्राहम हर्ड, जैसे ही अब्राहम को वो वचन मिला, अब्राहम 4:4 में आने के बाद यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम, आमेन, हालेलुया, 31st नाइट को सुना तो है, पता नहीं प्रभु कैसे करेगा, मैजिक होगा। नो मैजिक, आपको चलना होगा। आप नहीं चलोगे, आपको समझ नहीं आएगा। योर गॉड इज अनलिमिटेड गॉड। आमेन, हालेलुया। आइए 22 में जाते हैं, आदि पुस्तक 22। हालेलुया। ओके, मैं आपके लिए स्लोली पढ़ रहा हूं, आप बंगाली में फॉलो करें। 22:1। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। आमेन। परमेश्वर अब अब्राहम की क्या कर रहा है?
परीक्षा ले रहा है। आमेन, हालेलुया। सी, जब हम लोगों ने 12 का 4 पढ़ा, वहां पर लिखा है अब्राहम जब उसको क्रॉस करता है, इट वॉज हिज एज वॉज 75 ईयर्स। कितना? 75 ईयर्स। और जब हम 22 में आते हैं, दैट टाइम अब्राहम वॉज 100 ईयर्स। आमेन, ऑलमोस्ट ही क्रॉस द 100 ईयर्स। 25 साल तक अब्राहम परमेश्वर से बात कर रहा है। 25 साल के प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया। आमेन, दिस प्रॉमिस, ही वॉज वॉकिंग, वो चल तो रहा था प्रभु में, परंतु इस ड्यूरेशन के बाद परमेश्वर एक बच्चा उसे देता है। परंतु बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर उसकी क्या लेता है? परीक्षा लेता है। आमेन, हालेलुया। कितने लोगों को परीक्षा पसंद है? यू ऑल लाइक एग्जाम? नो, देयर आर मेनी पेरेंट्स, उन लोगों को एग्जाम सुन के ऐसा लगता है कि उनका एग्जाम है। बच्चों का एग्जाम मतलब माँ बाप का एग्जाम। कितने माँ बाप है यहाँ अपने एग्जाम के समय इतना पढ़ाई नहीं किया जितना अपने बच्चों के लिए पढ़ाई करते हैं। ওই পড়াটা ধরেছিস, ওইটাও ধরেছিস, কিন্তু আমাদের সময় আমরা কিছুই ধরলাম না, কিন্তু এখন সব কিছু ধরাচ্ছি আমরা। याद आ रहा है? हाँ, क्लास बंक मार के, है ना, पाचिल भांग के, ऐसे बाहर भाग के, ठीक है, सारा दिन घूमकर बैर खोजना, फिर वो क्या क्या फल तोड़ना, ये करना। अभी तो सब तरफ बिल्डिंग दिखता है, उस समय ऐसा था, बहुत मज़ा आता था जीवन। किंतु अभी एग्ज़ाम आने से अपने बच्चों को बोलते हैं पढ़ते बॉस। परीक्षा, एग्ज़ाम्स, मैं वो एग्ज़ाम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ज़िंदगी की परीक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द टेम्पटेशन विच अब्राहम गॉन थ्रू। क्योंकि ये एग्ज़ाम कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं ले रहा है, ये एग्ज़ाम खुद परमेश्वर ले रहा है। आमेन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। आमेन। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र को इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। 3rd, सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। 4, तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। 5, और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। 6, सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग पर छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। 7, इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा हे मेरे पिता। उसने कहा हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? 8, इब्राहिम ने कहा हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अपना एक लौता बेटा मुझे दे दो। आमेन। इट्स वेरी हार्ड। आपसे कोई पैसा मांग ले चलेगा, परंतु आपका एक ही बेटा, एक ही बेटी, एक ही संतान अगर कोई मांग ले तो नहीं चलेगा। दैट्स वेरी वेरी टफ, अ वेरी टफेस्ट वर्क हमारे लाइफ में। बहुत कठिन समय है ये। परंतु बाइबल क्या बताती है कि परमेश्वर आपसे ऐसे चीजों को चाहता है जिन चीजों के कारण परमेश्वर के प्रेम, ध्यान से सुने,
परमेश्वर उन चीजों को चाहता है जिन चीजों के द्वारा परमेश्वर के संग उसका कंपटीशन है। आमीन। अगर आप कहीं भी किसी भी जगह किसी भी चीज को परमेश्वर के सामने रख देते हैं तो दैट बिकम्स द कंपटीशन विद गॉड। और कहीं ना कहीं परमेश्वर को यह संदेह था, परमेश्वर को यह लग रहा था कि अब्राहम इसहाक को यानी अपने एक बेटे को, एक लौते बेटे को मेरे सामने खड़ा कर रहा है क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करता है। अगर आज आपके जीवन में कोई भी प्यारा चीज हो, प्रभु उसको ले लेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने स्थान को किसी को नहीं दे सकता। और परमेश्वर ये देखना चाहता था अब्राहम के जीवन में कि क्या अब्राहम अभी भी वही अब्राहम है जो मेरे वचन को सुनकर अपने घर को छोड़कर निकल गया था। परमेश्वर कभी कभी हमारे विश्वास को चेक करने की कोशिश करता है। क्या आप अभी भी वही हैं जो एक समय में सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के काम के लिए निकल जाते थे? क्या आप अभी भी वही हैं जो प्रभु की सेवा के लिए तैयार थे? क्या आप अभी भी वही हैं जो प्रभु के काम के लिए कुछ भी कर सकते हैं? क्या आप अभी भी वही हैं? God always wants to check that really क्या आप सच में प्रभु को ऑनर देते हैं कि नहीं देते हैं? Amen, Hallelujah। परमेश्वर की आज्ञा मानना is not a routine, it's an action। Amen, Hallelujah। परमेश्वर की आज्ञा मानना ये कोई सिस्टम नहीं है। परमेश्वर के आज्ञा मानने का काम है उसके दिल को प्रभावित करना, उसके दिल को जीत लेना। हालेलुया, हालेलुया। और उसका बेटा पूछता है, पिताजी अब्राहम माय फादर, वेयर इज सैक्रिफाइस? बलिदान कहां है? अब्राहम बोलता है, परमेश्वर उसका उपाय करेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उसका उपाय करेगा। अगर परमेश्वर ने कुछ मांगा है तो परमेश्वर ही उसका उपाय करेगा। अगर परमेश्वर ने इसहाक को मांगा है तो इसहाक को लेके शायद कोई और दे दे। अभी भी अब्राहम पीछे नहीं हटा। अब्राहम क्या बोलता है? परमेश्वर उसका उपाय करेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में से कोई चीजों को ज्यादा प्यार ना कर बैठे ताकि आप परमेश्वर को सम्मान देना भूल जाएं। आमेन। अब्राहम कहता है कि हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। आमेन। पर अब्राहम उसी भेड़ यानी इसहाक को ही बोल रहा है, तुझे ही तो मैं बलिदान देने आया हूं। वर्स 9। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। आमेन, हालेलुया। अभी अगर किसी को पूछते हैं कहां हो, हम बिजी हैं। किधर हो? हम उधर हैं। परंतु इब्राहिम, आप मार्क करना, जब भी परमेश्वर इब्राहिम को पूछा, हे इब्राहिम, इब्राहिम क्या बोलता है? मैं यहां हूं। जो आदेश है दो, जो बोलना है बोलो, मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं आज्ञा मानने के लिए ही बना हूं। आमेन। मैं तुझे सम्मान देने के लिए बना हूं। मैं अपने घर को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा तेरे सम्मान के लिए।
आज इसहाक को भी दूंगा तेरे सम्मान के लिए। और इब्राहिम जब छुरी उठाता है, जब वो तलवार उठाता है अपने बेटे को मारने के लिए, जब वो बलिदान देने के लिए अपने बेटे को एकदम प्रस्तुत कर लेता है, तो परमेश्वर आवाज देता है, वही आवाज, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इब्राहिम क्या कहता है, मैं यहां हूं। 12 उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसमें अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तू अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। अब मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। अब मैं जान गया हूं कि तू मेरी आज्ञा को मानता है। अब मैं जान गया हूं कि तेरे लिए मेरा सम्मान सबसे बड़ा है। आमीन। और आप देखिए इसका सम्मान परमेश्वर ने कैसे दिया। आज अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ें, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो भी स्वर्ग जाएगा, जो भी स्वर्ग जाएगा, बाइबल बताती है कि अब्राहम समस्त विश्वासियों का पिता कहलाएगा। आमीन। ये वही प्रॉमिस है कि मैं तेरे संतानों को तारों के समान करूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह अब्राहम ने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, उसी तरह यूहन्ना 3:16 में खुदा ने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। आमीन। जब आप परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर को सम्मान देंगे, परमेश्वर स्वर्ग में भी नहीं भूलेगा आपको सम्मान देने के लिए। हालेलुया। You need to honor God. हालेलुया, हालेलुया। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में बजा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की संति होम बलि करके चढ़ाया। 14 और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर क्या किया जाता है, उपाय किया जाता है। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। 17 इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष और निश्चय मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात 12:2 उत्पत्ति 12:2 क्या लिखा था कि मैं तुझे 12:4 अब्राहम और 22:8 क्योंकि तूने मेरी बात। दैट्स द ऑनर। आमीन। ये है परमेश्वर का सम्मान। परमेश्वर सिर्फ बोलता है और आप चलते नहीं हो। आमीन। जुम्मा 4 दिन नहीं होता है प्रभु में आने के बाद, और हम चाहते हैं कि हम एकदम आसमान में उड़ने लगे। मैं आपको बता दूं, अब्राहम 75 इयर्स अब्राहम परमेश्वर से बात करता है। फिर अब्राहम से परमेश्वर कब बात करता है? 99 इयर्स में जाकर। कितना साल का गैप? 75 से 99, हाँ, 24 साल के बाद तब परमेश्वर फिर अब्राहम से बात करता है। रह पाएंगे आप? आमीन, हालेलुया। इस चर्च का 24 साल नहीं हुआ है, और इस दरमियान कितने लोग आप प्रभु में डिसबैलेंस हो गए। आमीन।
कुछ महीनों में आप प्रभु को छोड़ दिए। कुछ लोगों ने प्रभु पर, लोग एकदम उत्साहित होकर आए थे। आमीन। परमेश्वर को सम्मान देना इतनी आसान बात नहीं है। 24 साल अब्राहम डिस्करेज नहीं हुआ। 24 साल तक वो एकदम ठीक था। 24 साल के बाद परमेश्वर उससे फिर से बात करता है, अब्राहम। और उस समय सारा चावल बीन रही है। आमीन। अब्राहम, अब मैं तुझे संतान दूंगा। जब उसका 100 साल होता है तब इसहाक का जन्म होता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को सम्मान, ऑनर गॉड बाय योर ओबीडियंस। परमेश्वर की आज्ञा मानकर दिखाओ, तब प्रभु का सम्मान होगा। आमीन। मुंह से बोलने से नहीं होगा, अब्राहम की तरह चलना होगा। आमीन। और उत्पत्ति 12 का 22 का 18 के अनुसार, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा, तूने मेरे वचन को, तू আমার आज्ञाकारी संतान, यू आर माई ओबीडियंट चाइल्ड, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। क्योंकि तूने मेरी बात को क्या की है? मानी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, when you do the things for God without questioning, जब आप परमेश्वर के कोई भी काम को बिना सवाल का करते हो, कोई भी काम, इट्स ऑनर गॉड। ये परमेश्वर को सम्मान देना होता है। आमीन, हालेलुया। कभी कभी कुछ पास्टर्स लोग मुझसे पूछते, कहाँ जाना है? मैं बोला, कहीं भी जाना है, मेरे संग जाना है। नहीं, फिर भी किधर जाना है? कुछ पूछने का ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको जहन्नुम में भी ले जाऊं, मेरे संग जाना है। तो उन लोगों को ये मालूम है, जहन्नुम में तो ये आदमी ले नहीं जाएगा, कहीं सेवा करने ही ले जा रहा होगा। तो मैं कभी कभी बोलता हूँ कि अब्राहम नहीं बना अभी तो। क्वेश्चन मत पूछो। अगर परमेश्वर का कोई भी फरमान आया है तो सवाल मत पूछो, बस करो। आमीन। आप सोचो ना, अब्राहम जब अपने घर को छोड़ता है, परमेश्वर वादा करता है उससे, परंतु उसके बाद अब्राहम ने एक दिन भी ऐसा नहीं था कि उसने परमेश्वर से सवाल पूछा। ही नेवर आस्क्ड क्वेश्चन। प्रभु तुम्ही बोले चले हमार जीवन भालो होबे, कोथाय? हम लोग कितने बार पूछ चुके, कितने बार हम लोग रो चुके हैं, प्रभु तुम्हें बोल रहे हमें आशीर्वाद देबे, प्रभु कबे देबे? 6 महीना हुआ है प्रभु में आए हुए। अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स, आई सेड अनलिमिटेड गॉड इज गोइंग टू गिव ब्लेसिंग्स। 31st नाइट, आज कितना तारीख है? कितने लोग 5 दिन के अंदर ही बोल दिया, प्रभु तुम ही बोल ले, तुम ही देखावे, देखाओ। 5 दिन में हम लोग का सबर खत्म। कितने लोग बोल रहे हैं, प्रभु बोला था मैजिक होगा, हुआ नहीं अभी तक। आमीन। अगर प्रभु ने वादा किया है, वो आपको मरने नहीं देगा, आपके मरने से पहले आपको आशीष देकर लोगों को बताएगा। आमीन। If God has promised anything, He will prove that He is your God. Amen. Hallelujah. Delayed obeyed means you are not honoring Him. अगर आप कोई भी आज्ञा देरी से मानते हो, इसका मतलब आप प्रभु का सम्मान नहीं करते हो। चर्च में भी बहुत सारे लोग मेरी बातों को बहुत देरी से पालन करते हैं, इसका मतलब वो मेरी सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कोई भी चीज अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है, अगर आप उसको बहुत अपने पास रखते हो, आगे ওই দিকে যাই, আগে এই দিকে করি, আগে ওইটা করি, যা কিছু হচ্ছে না, এবার প্রভুর কথা শুনতেই হবে। হ্যাঁ প্রভু বলো, इसका मतलब डिलेड
that means you are not honoring God. Amen. अगर आप कोई भी काम को देरी से करते हो, इसका मतलब आप परमेश्वर का सम्मान नहीं करते हो। आज तक परमेश्वर ने जैसे ही मुझे कोई भी चीज बोला है, मैंने यूं, बहुत लोगों के जीवन में सरप्राइज, बहुत ऐसे चीजें हैं, अचानक से परमेश्वर बोलता है, मैं बोलता हूं ऐसा होना चाहिए, बिकॉज आई नो आई कैन नॉट डिले, बिकॉज ही इज सेइंग समथिंग। वो कुछ बोल रहा है और हमें संगे संग करना है, बिकॉज वी क्लेम, हम क्लेम करते हैं कि हम अब्राहम के संतान हैं, तो अब्राहम जैसा काम भी करना होगा, अब्राहम जैसा चलना भी होगा, अब्राहम जैसा आज्ञा मानना भी पड़ेगा। आमीन। हम जब बोलते हैं तो हम सिर्फ मुंह से ना बोले, हम चल के भी दिखाएं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, नए नियम में हम देखते हैं कि लोगों ने प्रभु को कैसे सम्मान दिया। आमीन। आज हम और आप क्या उस लाइन में है या नहीं है? बुक ऑफ लूका की पुस्तक 7 चैप्टर 7 वर्स 36, संगमरमर के एक पात्र में इत्र लाई। आमीन। 38, और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से क्या किया? भिगोने, और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर क्या लगाई? इत्र मला। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। दैट इज ऑनर। ये प्रभु यीशु का सम्मान कर रही थी। आमीन। प्रभु यीशु का क्या कर रही थी? सम्मान कर रही थी। परमेश्वर को सम्मान देना है। आमीन। जब आपको प्रभु दिखता है, जब आप परमेश्वर के काम में, या परमेश्वर आपको दिखता, आप क्या कर सकते हो प्रभु के लिए? जब आप परमेश्वर की सेवा में, आप क्या कर सकते हो? जब आप मंडली में, क्या कर सकते हो आप प्रभु के लिए? जब आप बाहर में, क्या कर सकते हो आप प्रभु के लिए? जब आप अपने ऑफिस का काम खत्म करके उसके बाद आप क्या कर सकते हो प्रभु के लिए? हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको मालूम है इस औरत ने प्रभु का क्या किया? क्या किया? सम्मान किया। क्या किया? पर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आज बताऊंगा कि बहुत लोग इनवाइट करते हैं पर सम्मान नहीं करते। आमीन। अभी आप सबने कहा यस वी लव इनविटेशन। কেউ যদি আমাদেরকে ইনভাইট করে, people invite us but they do not give honor. Amen. बहुत लोग सम्मान करना भूल जाते हैं। Amen. बहुत लोग सम्मान नहीं। इसी तरह ये लोगों ने यीशु को बुलाया तो था, परंतु यीशु को सम्मान नहीं दिया। Amen. यीशु को बुलाया तो सही, बहुत अच्छी तरह से बुलाया, परंतु यीशु को बुलाकर सम्मान नहीं दिया। परंतु इस औरत ने यीशु का, अब आप बोलेंगे ये कहां लिखा है पास्टर जी? इसी बाइबल में लिखा है, उसी का 7, उसी का 44 में लिखा है। यीशु स्वयं खुद बोल रहा है। यीशु ने क्या कहा? और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने सिमोन से कहा, ये वही सिमोन है जो फरीसी है, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया हूं, मैं तेरे घर में आया हूं, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा नहीं दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। आमीन। तूने बुलाया पर तूने सम्मान नहीं दिया, पर किसी और ने आके तेरे घर में सम्मान दिया। इसका मतलब यीशु सम्मान चाहते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो,
जब आज बहुत लोग इनवाइट करते हैं, देयर आर मेनी पीपल इनवाइट्स बट वेरी फ्यू पीपल दे ऑनर, बहुत कम लोग आपको सम्मान करेंगे। परंतु यीशु ने क्या कहा, तुमने खाना तो खिलाया, तुमने टेबल में तो बैठाया, परंतु तुमने मुझे पांव धोने का पानी नहीं दिया, तुमने मुझे हाथ धोने का भी पानी नहीं दिया। यू डिड नॉट अनॉइंट मी, तुमने मेरे सिर पर तेल, क्योंकि उस समय तेल देना एक सम्मान, एक राजकीय बात होता था कि मेरे घर में कोई एक बहुत बड़ा गेस्ट आया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर का सम्मान ना करें, कई बार मैं बहुत सारे घर में गया तो बहुत लोगों ने मेरा मोजा वोजा निकाल कर अपने से जबरदस्ती हाईजैक कर लिया मुझे, जबरदस्ती, ठीक है, एकदम मेरा पैर वैर पकड़ के पूरा मोजा निकाल कर पूरा मेरा पैर धोना स्टार्ट। हम बोला, अरे मेरा पैर मत धो, क्या मिलेगा मेरा पैर धो। कई बार तो मैं रोक पाया, कई बार मैं रोक नहीं पाया, परंतु परमेश्वर का सम्मान देना नहीं भूलना, प्रभु का सम्मान देना नहीं भूलना। प्रभु यीशु ने स्वयं उस आदमी से कहा, जिस आदमी ने यीशु को बुलाया, सिमोन फरीसी, उस फरीसी को कहा कि तूने मुझे बुलाया परंतु तूने मुझे सम्मान नहीं दिया। इस औरत ने मुझे नहीं बुलाया पर इसने मेरा सम्मान किया। आमेन, हालेलुया। We need to honor God. Amen. What Bible says, मरकुस रचित सुसमाचार में आगे बढ़ते हैं, इस औरत के बारे में और भी डिटेल्स निकालते हैं। मरकुस उसका 14, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 14, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 14, मरकुस उसका 14 का 4 में क्या लिखा है, परंतु कोई अपने मन में रिसिया के कहने लगा, इस इत्र का क्यों सत्यानाश। अरे कोई काम नहीं है, चर्च में जाके काम, अपने टाइम वेस्ट करता है ना। बोल, इसके पहले जब आप अपने घर में चुपचाप बैठ के रोते थे तो कोई बोलने वाला नहीं था, परंतु अभी 2 घंटा चर्च में रह के आते हैं तो बोलता है तुम्हारे कोनो काज नहीं, शुद्ध चर्चे जाओ। ऐसे बोलने वाले लोग मिलेंगे, है ना। इसके पहले पॉकेट मारता था, शराब पीता था, वो चलेगा। कुछ लोग ऐसे ही हैं, अपना तो सम्मान नहीं किया परंतु अब क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं। क्या बोल रहे, परंतु कोई अपने मन में रिसिया के कहने लगा, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आई एम रीडिंग 5, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था, और उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा उसे छोड़ दो। किसने कहा? यीशु ने कहा उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ क्या की है? उसने मेरे साथ क्या की है? प्रभु को सम्मान देने का मतलब है कि आपने क्या किया है? प्रभु का भलाई किया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। Oh, you need to honor God in this year. Start honoring God. Amen. Unlimited God. If you want to see unlimited God in your life, अगर आप असीमित परमेश्वर को अपने जीवन में देखना चाहते हो तो परमेश्वर के आज्ञा मानकर उसको सम्मानित करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? क्योंकि उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, तुम जब चाहते हो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा। आमेन, हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं अरे चर्च में देके क्या होगा, कंगालों को दे सकते हैं। आता हूं मैं वहां पर, जो कुछ ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिल इतना बड़ा है, वो लोग ऐसा। यीशु खुद बोल रहे हैं कंगाल तुम्हारे संग सर, अपना खिड़की खोलो देखो कंगाल दिखेगा।
अपना दरवाजा खोलो, कंगाल दिखेगा। अगर वहां भी नहीं दिखे तो 2 कदम चलना, देखना कंगाल लोग पड़ा है। भिखारी लोग सब समय मिलेंगे, परंतु परमेश्वर के लिए कुछ करने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। प्रभु बार बार साइमोन फरीसी के घर नहीं आने वाला था, प्रभु उसी दिन आया था और उस औरत ने उसी दिन प्रभु के लिए कुछ किया। आमेन, हालेलुया। ये साल आज आपके जीवन में है। मैं आपको बता रहा था, हमारा जिस दिन चर्च एनिवर्सरी था, मैंने कहा इस साल भी हम कलीसिया को और भी बड़ा करना चाहते हैं। इस साल भी हम कलीसिया को और आगे लेकर जाना चाहते हैं। मैंने कहा फिर से आप ब्रोशर लो, फिर से आप परमेश्वर के लिए बीज बो, फिर से परमेश्वर के लिए कुछ करो। आमेन। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हो, यीशु ने क्या कहा? ये मेरा सम्मान है। क्या है? ये मेरा सम्मान है। यीशु ने कहा उसे छोड़ दो, उसे, क्योंकि वो क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो। मैं तुम्हारा साथ सदा ना रहूंगा। वर्स 8, जो कुछ वो कर सकी, जो कुछ वो उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। आमेन, हालेलुया। शायद आसपास के लोगों को समझ में नहीं आया। आज जब आप ये कलीसिया बना रहे हो, आज आप ये चर्च बना रहे हो, आज प्रभु आपको एक ही चीज कहना चाहता है, अरे एक समय में ये कलीसिया मैं उठाने के लिए आऊँगा, इस कलीसिया को मैं लेने के लिए आऊँगा, इस चर्च को मैं लेने के लिए आऊँगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज इस कलीसिया में बहुत सारे लोग बाहर हैं जो रोते हुए आएंगे और हंसते हुए जाएंगे। आमेन। वर्स 9 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ऑनर गॉड। आमेन। फर्स्ट सैमुएल में हमने पढ़ा था, उसका 2:30 में क्या लिखा था? बाइबल में क्या? परंतु यहोवा की यह वाणी है। किसकी वाणी है? यह कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाने वो छोटे समझे जाएंगे। आमेन। परमेश्वर का सम्मान करना सीखे, परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया में आने का समय 8:30 बजे है। आप 8:45 बजे चर्च नहीं आ सकते हैं। ये परमेश्वर का सम्मान नहीं हुआ, ये परमेश्वर का अपमान हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप कलीसिया में परमेश्वर के वचन को सुनने आए हैं तो आपको अपने आप को ऐसे ही प्रस्तुत करना है, परमेश्वर का वचन सुनना है। द मोर यू ऑनर गॉड। आज आपका बात कोई नहीं सुनता है, क्यों मालूम है? क्योंकि आप प्रभु का बात नहीं सुनते हो। आमेन। जिस दिन परमेश्वर का बात सुनना सीख जाओगे, आपके बातों को भी लोग बाहर सुनेंगे। आमेन, हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन में फोन चलाते हैं, परमेश्वर के वचन को होते होते आप इधर देखते हैं, उधर देखते हैं। आपके जीवन में भी वैसे ही होगा। आप कुछ भी बोलेंगे, बाहर कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि आपने परमेश्वर को तुच्छ समझा। प्रभु आपको भी बाहर तुच्छ रखेगा। अगर आप परमेश्वर के घर में प्रभु को सम्मान करेंगे, प्रभु आपको भी बाहर सम्मान करेगा। आमेन। आज आपका बात कोई सुनना नहीं चाहता, क्यों मालूम है? इसका बात कौन सुनेगा? इसकी बातों कौन सुनेगा? याद करो, जब प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का वरदान सबको दिया, जब वो 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, उसके बाद जब पतरस खड़ा होकर प्रचार करने लगा,
बाइबल में क्या लिखा है? लोगों ने बोला, अरे ये वही पतरस नहीं है जो चमड़े का धंधा करता था? इसको इतनी ज्ञान की बातें कहां से आ गई? बाइबल में लिखा है उसके एक प्रचार से एक समय ऐसा हुआ था कि पतरस नाव में अकेला जाल फेंक रहा है, कोई मदद करने वाला नहीं, परंतु वही पतरस जब प्रभु का बात सुनकर आगे बढ़ता है तो पतरस बोलता है 3000 लोगों ने अपना जीवन एक दिन में प्रभु को दे दिया। The more you honor God, God will give you more honor in this world. And He will show you that He is unlimited God in your life. Amen. परमेश्वर ये साबित करेगा कि वो असीमित परमेश्वर है, असीमित, तार कोनो सीमा नहीं। उन्हीं प्रूफ করবেন আপনার জীবনে। हालेलुया, हालेलुया। If अब्राहम चाहता तो परमेश्वर की बात को नहीं सुनता। इस औरत को अब्राहम को बोला गया था, परंतु इस औरत को बोला नहीं गया था। आमेन। স্যার আমাকে যদি বলবে তাহলেই আমি করব। आमेन। बहुत लोगों का अभी चर्च में ऐसा हो गया है, सर तो আমাকে बोलेনি আমি কেন করব? बिकॉज आप मुझको छोटा करके अपने आप को बड़ा करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं आपको बोलूं कर दो भाई कर दो। यू वांट दिस, तो मैं छोटा बन सकता हूं। आमेन। अगर आपको ऐसा लगता है हर एक चीज़ सर बोलेगा, हर एक चीज़ पास्टर जी बोलेंगे तभी करेंगे और तब आप करोगे, इसका मतलब है कि आप अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हो और मुझे छोटा। आई एम रेडी टू, क्योंकि मैं शुरू से अपने आप को वैसे ही बना के आया हूँ। पर इस औरत को किसी ने नहीं बोला, पर इसने किया, और इसका सम्मान कैसे प्रभु ने दिया? आज भी इस औरत के बारे में हम प्रचार कर रहे हैं। आमेन। যিশু কি বলছেন? যিশু বলছেন, प्रभु यीशु ने कहा कि जब तक मेरा सुसमाचार प्रचार होगा तब तब इस औरत के बारे में बोला जाएगा। आमेन। If you want to see unlimited God in your life, आज का प्रचार इस पूरे साल का बेस है, याद रखना। इस पूरे साल का ऑनर गॉड by your obedience. Amen. प्रभु को बहाना पसंद नहीं है। परमेश्वर बहाना पसंद नहीं करते। God does not like excuses. Amen. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह को कोई भी एक्सक्यूज पसंद नहीं है। कोई जब बोलते हैं क्या करे, ये हो गया था इसीलिए नहीं कर पाए, वो हो गया था इसीलिए नहीं कर पाए। क्विक एक्शन। Obedience is an action word. Amen. अपने आप को खुद से डिस्करेज मत करो। डू नॉट डिस्करेज योरसेल्फ। इस संसार में अगर कोई किसी को डिस्करेज करता है वो खुद हम है। आई माई सेल्फ कैन डिस्करेज माई सेल्फ। मैं अपने आप को डिस्करेज कर सकता हूं और मैं अपने आप को इनकरेज कर सकता हूं। इस औरत को किसी ने नहीं बोला था कि अपने इत्र को लेकर जाओ, वेरी एक्सपेंसिव, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। आज कितने लोग, हम लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। हमारा चर्च नहीं है, इस दुनिया का बहुत सारा चर्च है जो रोज, हर संडे, हर महीना परमेश्वर के घर में चोरी करता है। सिर्फ हमारा चर्च नहीं है, इस दुनिया में बहुत सारे चर्च हैं। मैं तो बोलूं ऑलमोस्ट ऑल चर्च, सारे चर्च ऐसे हैं कि परमेश्वर के घर में चोरी करते हैं। परमेश्वर के घर में, परमेश्वर को जब हम दान देते हैं, ये परमेश्वर का सम्मान है, ये भीख नहीं है, ये कोई भीख नहीं है। प्रभु ने क्या कहा? उसने मेरे सम्मान के लिए किया। प्रभु ने क्या कहा? उसने मेरे लिए उपकार किया है। जब हम अपने दसवांश को देते हैं, हम भीख नहीं देते हैं, हम परमेश्वर को सम्मान करते हैं। Amen. Honor God by obedience. परमेश्वर की आज्ञा को पालन करें,
परमेश्वर को सम्मान देते हुए। मुझे याद नहीं पड़ता है, मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में भी मैं कभी भी इस वचन को कभी भी नजरअंदाज मैंने नहीं किया। कभी भी परमेश्वर की सेवा से पीछे नहीं हटा, क्योंकि मुझे मालूम है द मोर यू ऑनर गॉड, जितना परमेश्वर का आप सम्मान दोगे, परमेश्वर आपको उतना ही संसार में सम्मानित करेगा। जहां भी रहो आप, जो भी करो आप, whatever you do, God is going to honor you in this year. परमेश्वर इस साल आपको सम्मानित करेगा। परमेश्वर इस साल आपको शो करेगा that He is unlimited God. Amen. He will prove Himself. Amen. There are many words. बहुत सारे वचन पूरा होना स्टार्ट हो चुके हैं। मैं बोल रहा हूं सारे वचन पूरे होंगे, सब पूरे होंगे। I felt so sorry. Sister Anita Koiri আমাকে ফোন করে বলছে, স্যার আপনি এই কথা কেন বলেছিলেন? She called me and said कि कुछ प्रियजन हमें छोड़कर चले जाएंगे। ये मैंने नहीं, ये परमेश्वर ने बोला है, परंतु मैंने ये भी बोला है few people are going to add also. Amen. परमेश्वर हमारे लिए सब भला करेगा, सब अच्छा करेगा। Amen. Honor God. परमेश्वर की आज्ञा माने, परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़े, अपने कलीसिया के लिए कुछ करे, अपने चर्च के लिए कुछ करे। एक समय, एक वक्त आएगा आपके पास समय नहीं रहेगा कुछ करने के लिए, आपके पास मौका नहीं होगा। इसीलिए यीशु ने कहा कि गरीब और भिखारी तो सब समय तुम्हारे साथ रहेंगे, ये जो मौका है, ये मौका तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। आमीन। प्रभु हमसे तभी चाहता है जब हमारे पास नहीं है। आमीन। परमेश्वर हमसे तभी चाहता है जब हमारे पास नहीं है। जब हमारे पास बहुत है, प्रभु को कोई इच्छा नहीं है लेने का। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के पास सिर्फ एक ही बेटा था, प्रभु ने कहा दे दो। आमीन। अब्राहम के पास कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपना जीवन मुझे दे दो। अब्राहम ने बोला ये लो मैं देता हूं। आमीन। बाइबल में लिखा वर्स 2 में उसने कहा और वर्स 4 में अब्राहम चला। आमीन। अगर 31 तारीख को आपने सुना है और आप अभी भी चलना स्टार्ट नहीं किए, तो आइए हम अब्राहम का संतान बने, हम अब्राहम की तरह चलें, हम अब्राहम के अनुसार चलें। हम प्रूफ करें इस औरत के द्वारा, इस महिला के द्वारा। हालेलुया। इस महिला का बाइबल में कोई नाम नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है। पहला नाम वो पापी औरत थी, वो पापिनी औरत थी, परंतु दूसरा नाम यीशु ने जोड़ा। यीशु ने क्या कहा? जब इस संसार में मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार होगा, ये औरत आने वाले समय में लोगों के लिए एक उदाहरण बनेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं नहीं जानते कि परमेश्वर आपको कहां उदाहरण बनाना चाहता है। आमीन। उस औरत को पता नहीं था कि जब वो एलेबस्टर का जार लेकर आ रही थी, उसे पता ही नहीं था कि इसके फूटने के बाद ये सुगंध इस पूरे दुनिया में जाने वाला है। आमीन। उसका इतना, वो परफ्यूम इतना पावरफुल था कि लोग ले नहीं पा रहे थे, परंतु उस औरत को मालूम ही नहीं था कि प्रभु अब इसको इस घर के बाहर, उस नगर के बाहर, उस देश के बाहर, उस देश, महासागर, ये सारे भूमंडल में प्रभु इसके सुगंध को फैलाने वाला है। आमीन। आज वही सुगंध हम सूंघ रहे हैं, आज वही सुंदर अरोमा, the same aroma we are feeling that, oh nice aroma,
And what was the aroma? The aroma was the honor. Amen. Hallelujah. आज आइए परमेश्वर की आज्ञा को पालन करें, प्रभु के वचन को पालन करें। चाहे हमारे जीवन में जितना भी कमी घटी हो, चाहे हमारे जीवन में जितना कुछ भी हो, अपने जगह में खड़े रहें। He will prove that he is your God. Amen. Hallelujah. 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 May God bless you all of you. प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए मैं अपने